नाजायज़ ताल्लुकात के शुबहा में शौहर ने अपनी ही बीवी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और लाश को पंखे के साथ लटका दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि खुदकुशी साबित हो सके। उससे बात की थी मैंने कि ऐसा ना करो, घर है, बेटा है, माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर मैं गुस्से में आके मारने की कोशिश नहीं की, थोड़ा गला दबाया और वो मर गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नौखर नई आबादी फारूकाबाद शेखुपुरा के गांव में मैं इस टाइम मौजूद हूं। कोमल नामी लड़की जिसकी शादी 2.5 साल पहले हुई, उसको उसके ससुराल वालों ने, उसके शौहर ने जुल्म और सितम का शिकार रखा। पिछले 2.5 साल से एक बच्चे की माँ है। ये जुल्म और सितम का सिलसिला इतना बढ़ गया कि वो मर ही गई, ये जुल्म सहते सहते। ये मुकदमा दर्ज हुआ यहाँ के पुलिस स्टेशन में, बाद में कब्रकुशाई की गई और फिर मामलात कहाँ को पहुँचे। कोमल के वालिदैन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाती हूँ। कोमल के वालिदैन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। कोमल के वालिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, कोमल की शादी को कितना अरसा हुआ है? 2 माह हो गए, 2 साल जी। 2 साल। कितने बच्चे हैं कोमल के? एक बेटा है जी। अच्छा, क्या हुआ था जब इसकी शादी हुई है? तो ये अपने मियाँ के साथ, अपने ससुराल के साथ सही गुजर बसर हो रहा था? सही गुजर हो रहा था जी, लेकिन मार कुट बहुत करते सन। अच्छा, कौन कौन करता था? ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ अच्छा ਮੁੰਡੇ ਦਾ। अच्छा ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਇਹ ਹੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਵਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, अच्छा ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਜੱਜੁਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ठीक है। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਮਲ ਕਤਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ 5 ਵਜੇ अच्छा ਸਵੇਰ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ अच्छा जी। ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠੋ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਈ ਸੂ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਸੂ। ਆਂਦੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। अच्छा जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਚੂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ। ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕੋਮਲ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਪਕਾ ਲੈਣੀ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਹ ਕੇ ਲਗਾਇਆ। अच्छा ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਫਿਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕੋਮਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਸਗੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਕੰਮ। कोमल को छोड़ने कौन गया था? ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਜੀ। आप लोगों को ये कह के लेके गया था कि मैं अस्पताल छोड़ने जा रहा हूँ? हाँ जी। ठीक है। फिर जब अस्पताल में आप लोगों ने पता किया तो उन्होंने कहा कि कोमल आई ही नहीं? हाँ जी। अच्छा जी। ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ की क्या फ़ोन करके? ਫੋਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਮਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। कोमल की वालिदा भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। फिर आप लोग कोमल के पास गए जब फ़ोन आया, ज़ाहिर बात है। फिर मैं बड़ा रोई, मैं पिट्टी। मैं आखा शजेब तू मेरी कोमल मार छड़ी है। मेरे दस किवें मारी है मेरी कोमल।
ਬੜਾ ਰੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ। ਕੋਮਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਮਲ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਮਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਸਦੀ ਖੇਡਦੀ ਆਈ ਹੈ, मैं किवें मंडा मेरी कोमल नूं मिनट च दिल दा अटैक हो गया। जब आप कोमल के पास गई हैं, हाँ जी। फोन पे बताया है कोमल फोत हो गई है, कोमल किस हालत में थी? जी कोमल मेरे जांदियां नूं अकड़ी पई सी, ओदे मुंह दे उत्ते नील पै सन, गला भी सुजा सी। कोमल की लाश को पंखे के साथ किसने लटकाया था? नहीं जी सानू नहीं पता। तुसी लटकी हुई लाश देखी सी? नहीं जी तुसी नहीं देखी? नहीं, साडे जांदियां नूं मंजी दे उत्ते उन्हां पाई सी अच्छा ਤੇ ਅਕੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕੜ ਗਿਆ ਹੈ, ठीक है ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ठीक है। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾਰ ਛੱਡੀ। अब आप कुछ कहना चाहती हैं, आपको इंसाफ मिला है या नहीं? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੁਜਰਮ ਸਾਡਾ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿੰਜ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕਬਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਡਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਮੁਜਰਮ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਮੁਜਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਰਿਟਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नहीं मुजरम नहीं है, इंज वो बोलन लग पे, नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। मैं बोली, मैं कहा सर जी कबर च मेरी धी टुर गई, तुसी भी जाना, इंसाफ करो। मुलजिम शाहजेब मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, शाहजेब से बात करते हैं। शाहजेब कितना अरसा हुआ है शादी को? जी तकरीबन 2.5 साल हुए। 2.5 साल हुए हैं। बच्चे भी हैं? जी एक बेटा है। एक बेटा है। अच्छा क्या हुआ था को 2.5 साल जिंदगी कैसी गुजरी आपस में? 2.5 साल अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। मैं काम पर जाता था, अच्छा ईंटें डालता था भट्ठे पे, अच्छा तो मुझे पता लगा कि वो गलत फहमी कर रही है बेगम मेरी। अच्छा मैंने उसे देखा और समझाया, उसकी बात समझ में नहीं आई। फिर मैं एक दिन काम पर आ रहा था और गांव का एक लड़का है, वो बाहर निकला दरवाजे से। मैंने उससे पूछा, वो मेरे हाथ मेरे पे पड़ गया। अच्छा वो लड़का क्या नाम था उस लड़के का? का नाम मुख्तार, उसका नाम था इजाज़। इजाज नाम था, जिसके तुम्हारी बीवी के साथ गलत किस्म के ताल्लुकात थे, ऐसा ही है? ऐसा ही। मैंने उसे पूछा, वो मेरे हाथ पड़ गया, लड़ाई झगड़ा वहाँ हुआ थोड़ा वाला। वो भाग गया। अच्छा फिर मैं घर गया, घर जाके बेगम से पूछा, बेगम ये आदमी किधर आया था? वो मेरे हाथ पड़ गई बेगम मेरी। अच्छा झगड़ा हुआ आपस में फिर झगड़ा होने लगा। अच्छा मैंने उसे 2-4 मारियाँ डांगे, 1-2 थप्पड़ मारा, फिर वो मेरे हाथ पड़ गई। मैंने उसका दुपट्टा था गले में, उसे पकड़कर ज़रा दबा दिया और फिर वो मर गई। उससे बात की थी मैंने कि ऐसा ना करो, घर है, बेटा है, माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, घरेलू मामला घर बात निपट जाए तो और क्या चाहिए। उससे मैंने पूछा, वो मुझे गलत कह रही थी, ऐसा हो गया। फिर मैं गुस्से में आके मारने की कोशिश नहीं की, थोड़ा गला दबाया और वो मर गई। अच्छा ठीक है। फिर जब वो मर गई, फिर उसको उसकी लाश को किसने लटकाया था पंखे के साथ? मैंने दोस्तों को कहा था, फिर आन के वो उसे लटका दिया। बाकी कौन कौन था घर पे? मैं और बेटा ही था। बाकी फैमिली मेंबर, माँ बाप, वालदैन किधर थे? नहीं, वो अपने घर थे। बाहर गए हुए थे? जी। अच्छा मुझे बताओ, दोस्तों के साथ मिलके तुमने उसकी लाश को पंखे से लटका दिया, फिर तुम खुद कहाँ भागे? मैं उधर गांव में था, ज़रा साइड पे हो गया अच्छा कि पता लगे कि इसने खुद ही अच्छा फा लिया। इस कत्ल में तुम्हारे वालिदैन भी शामिल थे? कुछ कॉल्स ओपन हुई, कुछ खबरें ओपन हुई कि तुम्हारे वालिदैन भी शामिल हैं, वो भी जुल्म सितम करते थे तुम्हारी बीवी पे? नहीं जी, नहीं, वो बहुत अच्छा करते थे उससे। अच्छा कुछ साल बाद को कनक मूंजी दे दिया, गांव में ऐसा ही होता है। अच्छा को लकड़ी दे दी, को मूंजी कनक वगैरह दे दी कि
अच्छा, मुझे इस बात का बताओ कि कोई भी शख्स आए और आके ये शिकायत लगा दे कि तुम्हारी बीवी के फलाने बंदे से नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो क्या उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं? अभी देखो ऐसा नहीं हुआ है, उन्होंने लोगों ने मुझे बताया, मैंने गौर किया, मैंने उससे बात की कि ऐसा बातें लोग कह रहे हैं, इज़्ज़त का मामला है, आप ऐसा ना करो, अगर कोई बात है भी ऐसी तो। लेकिन मैंने एक दो दफ़ा खुद उसको देखा है घर से नज़दीक गुजरते हुए, फिर मैं जब गया इसे, जिस दिन मारा इसे, वो घर से बाहर निकला है मेरे घर से। वो तो देखा था जी। नाज़रीन, मुलजिम के बयानात आपके सामने हैं सारे के सारे, जो भी मामला हुआ इस हवाले से SHO क्या कहते हैं, हम उनके पास चलते हैं। सदर फर्रुखाबाद पुलिस स्टेशन के SHO फारूक साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम फारूक साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, शाहज़ेब मुलज़िम था, उसने अपनी बीवी को मार दिया था, उसके घर वालों ने उसको दफना दिया था। बाद में उसकी कब्र कुशाई हुई, उसमें पता चला कि इसने इसको फंदा दिया है। फिर उसको उन्होंने मुद्दइयों ने 4 बंदों पे FIR कराई, उसका वो बेनोई था, बहन थी, वालिद था। असल में इसने ही मारा था शाहज़ेब ने, वो गले के जो कि लड़की का शौहर है, जो लड़की का शोर है, तो उसको सही गुनहगार किया, बाकी को बेगुनाह कर दिया। बिल्कुल ठीक है फारूक साहब, जैसे कि FIR कटी और FIR के बाद जो नामजद मुलजिमान हुए उसमें आपने शाहज़ेब को बाकायदा गिरफ्तार किया है, आवाम के सामने लेकर आए। ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल बता दें कि इनके घर का मेन लड़ाई झगड़ा ऐसा क्या था कि बात कत्ल तक आ पहुंची? उनका मियाँ बीवी का था, कोई वो कहता था इसके तलकात सही नहीं है। अच्छा। हाँ, उससे तंग आकर उसने उसको। अच्छा, इस कत्ल में उसकी फैमिली भी मुलव्विस है या अकेला शाहज़ेब है? अकेला शाहज़ेब ही है, उसकी कोई फैमिली का कोई नहीं है। मुद्दइयान आपकी कारकर्दगी से मुतमईन है? ये तो उनको पता है मुतमिन है या नहीं है, बाकायदा SP साहब ने सुना है इसको, DSP साहब ने सुना, फिर फैसला हुआ। अच्छा, मुझे ये बता दें कितने दिन में गिरफ्तार किया है FIR से लेके गिरफ्तारी तक? वो बस 2 दिनों में हो गया था। अच्छा, कोई मुश्किल पेश आई, कोई प्रॉब्लम? कोई मुश्किल नहीं आई। कैसे ट्रेस किया है, लोकेशन से या अपनी एक टीम बना के, किस तरह? और अपने मुखबरों से एक टीम बनाकर। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।